वो गिर गया, वो एक्चुअली जब यीशु मसीह उसके ऊपर जाहिर हुआ तो उसकी आंखें अंधी हो गई थी नूर से. You see? And he was cleansed by the power of the Holy Spirit. He did not ask for this, did he? He did not ask for this. I said, we cannot compare every circumstances with this baptism. आपको लोग कहेंगे जी क्रूस का किसने किया था बपतिस्मा? उसको तो बपतिस्मे से पहले ही यीशु ने चुन लिया, उसको तो पहले ही निजात मिल गई, उसको तो पहले ही यीशु मसीह मिल गया और पहन लिया. अगली बात ही नहीं पड़ेगी. पहली बात कि जब यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ तो ही वॉज ब्लाइंड फॉर हाउ मेनी डेज? 3 days ही वॉज ब्लाइंड. और फिर उसको अनानास के पास भेजा जाता है और वो उसके लिए दुआ करता है, उसकी आंखों से छिलके से गिरते हैं, फिर वो बीना हो जाता है और देखना शुरू हो जाता है. कदापि को देर करता है और बपतिस्मा लेना जरूरी है, फिर वो लेता है. लेकिन लोग जो आर्ग्यूमेंट करेंगे वो ये कहेंगे जी उसको तो निजात तो पहले मिल गई. यू सी, हम कैसे फैसला कर लें उसको निजात मिल गई? अभी जो यीशु ने कहा उसने किया नहीं. जब तक जो यीशु ने कहा है वो नहीं करता, अभी तक वो अंडर इंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल के मुताबिक उसको बोला, भेजा गया कि जो एक मसीह का शागिर्द है उसके पास, फिर वहां जाकर अमल जो उसको कहा गया था उसके मुताबिक वो किया गया, फिर वो बीना हुआ, फिर उसने जो है वो खुदा की कुदरत को हासिल किया. एकदम से नहीं, ये उसके लिए शौक था. 3 days के लिए he was in shock because he can't see, he can't eat, he can't drink, he can't do anything. He was shocked. What happened to me? हो सकता है ये भी सोचता अगर ये मसीहा मुझे ये मसीह नहीं लेना देना, अब मुझे अंधा कर दिया, सेकंड टाइम आएगा तो पता नहीं मुझे क्या चलने से भी कासिर कर दे. इंसान सोचता तो होगा ना कि कुछ जाहिर हुआ है तो वो कह नहीं सकता कि अब तो मुझ पर ये जाहिर ही हुआ तो मुझे अंधा कर दिया, वो दूसरी दफा आएगा तो मेरे साथ क्या होगा, क्या करेगा? He could think negatively, you know. But please be aware of other people who actually trying to snatch your salvation from you. Be careful. By baptism, we become one in Christ. Hallelujah. और जिन्होंने वो स्प्रिंकल बैप्टिज्म लिया हुआ है, they not actually become one in Christ. उनको तो पता ही नहीं था कि यीशु को पहनना क्या होता है. उनको तो पता ही नहीं है कि यहूदी क्या होता है, जेंटाइल्स क्या होता है, गुलाम और आजाद क्या होता है. They know nothing about this. अगर वो किसी हिंदू के घर पैदा हुआ होता तो वो हिंदू होता. आप मसीही खानदान में पैदा हुए तो आपको इस तरह एक रस्म अदा करके तो आपको मसीही खानदान में ले आए. लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर हम इतने मसीही हैं तो मैंने बताया था जब मैंने सीड की बात की थी, मैंने बताया था कि द सीड इज परफेक्ट, यू बोर्न ऑफ अनकरप्टेबल सीड. डू यू रिमेंबर दिस? इफ वी बोर्न ऑफ इनकरप्टेबल सीड, so why do we need these things? Why we need to sprinkle water baptism? Why do we need other things? We don't need it. The Christian believers' children are perfect, they are holy, they are righteous. We don't need to do anything. But the water baptism is a personal thing. Personal, you got to show your love, you got to show your feeling for Jesus, to become one in Jesus. Hallelujah. So this is how we become a one family. In a family, we all are brother and sister. We all are one in Christ. There is no, in a family, we can't say, oh, you're a woman, you don't deserve this. You're a woman, you can't eat this thing. You're a woman, you can't come to the table. Because you're a woman, you can't sit by the man. Because you're a woman, you should walk behind man. What is this? It's completely nonsense. These things were there in Jesus' time. The women have no right at all. They can't speak. They can't actually give their opinion in the family. They can't do anything. The women were just for cooking purpose and just bring children in the family. That's this all for.
You can read traditions, old traditions in the Bible, you see. All is there. But in Jesus, the woman, men are equal. Because we are one in Christ. The same Jesus you have, the same Jesus I have. You see, we are one in Christ. Through the baptism. Because we confirm we die with Jesus. We rose again with Jesus. We share these things. Hallelujah. एक और हवाला पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खत्म करेंगे. Acts chapter 2. After baptism, you will receive the gift. Acts chapter 2. निकालें. Quickly. मैं देखता कौन पहले निकाल सकता है. जल्दी जल्दी निकालें. Chapter 2, verse 38 पढ़ें. Please, quickly. लेट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ें. Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gifts of the Holy Spirit. हालेलुया. पतरस ने उनसे कहा, क्योंकि उन्होंने पूछा था. देखें 36 में हमने देखा है, पर इसराइल का सारा ग्राम यकीन जान ले कि खुदा ने उसे यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया खुदावंद भी किया और मसीह भी. जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों ने कहा कि आए भाइयों हम क्या करें. They were fully converted by the sermon which was preached by Peter. You see, Peter. And this is the same Peter which we believe he was the first pope, and some believe he was the first bishop, some believe he was the first leader. The same Peter. Why you ignore the teaching of Peter? Why? The same Peter is preaching here. पतरस ने उनसे कहा, अब कौन कहने वाला जी? ये मैंने कहा या पतरस ने कहा है? मैं पतरस के वर्डिंग लगाऊं पढ़ने. पतरस ने कहा, ये मैंने नहीं कहा. पतरस ने उनसे कहा कि पहली बात क्या करो जी? तौबा करो. रीपेंट. जो मैंने पहले बताया कि रीपेंट होना जरूरी है. रीपेंट. ओके, तौबा करो. और तुम में से हर एक किसके लिए जी? क्या लिखा है भाई? शमीम गौर से जरा पढ़ना ऊंची. हर एक अपने और तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए बस यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो तुम रूह कुदस नाम में पाओगे. यस, तो नाम के आगे रिवार्ड क्या होगा जी? रूह कुदस. रूह कुदस. So there is a reward as well. Okay. मैंने बताया कि हमें यीशु मसीह शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना है. इन लोगों को किसके लिए जी बपतिस्मा लेना था? अपने गुनाहों की माफी के लिए. Christian believers are people who born in Christian family. We don't actually baptize the way which they need to receive. इनको पतरस ने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा कहा. हमारे लिए है जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लिया है. हमें मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना है. इनको अपने गुनाहों के लिए बपतिस्मा लेना है, क्योंकि these people are Jews. Why? Because these are the people who killed Jesus. These are the people who ignored Jesus' teaching. These are the people who did not listen to God. These are the people who ignored the teaching and the law and everything which God said to do. And they commit sin against God. They must repent their sin. और अपने गुनाहों का इकरार करें और तौबा कंफर्म करें कि वो सिनर. और मसीह के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं या लेंगे तो हमें कंफर्म करना है. इट्स अ पर्सनल कमिटमेंट विद जीसस. सो वी कमिट आवरसेल्फ फॉर जीसस. इनको गुनाहों के लिए बपतिस्मा लेना है हर सूरत में, और हमने यीशु मसीह में शामिल होने के लिए बपतिस्मा लेना है ताकि हम यीशु मसीह को पहन लें. वी आर इन जीसस. हालेलुया. एंड वी आर वन इन जीसस. अगर इन्होंने भी वन होना है, ये गैर कौम वाले हैं, दे डोंट बिलीव इट. एनीबॉडी, जैसे मैंने आपको पता है कि बहुत सारे गैर मसीही जो हैं उनको बैप्टाइज किया यहाँ पर, तो उनको मैंने यही तालीम दी कि आपको अपने गुनाहों से पहले माफी मांगनी है, तौबा करनी है, और उसके बाद बपतिस्मा लेना है गुनाहों की माफी का. बपतिस्मा लेना है, फिर आप जो है मसीह के काबिल होंगे कि उसको पहन लें.
लेकिन जिन्होंने पहले ईमानदार हैं, यीशु पर ईमान तो रखते हैं, बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह का इकरार तो करते हैं, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु मसीह को दावत करते हैं पहना हुआ, लेकिन बपतिस्मा नहीं लिया, तो मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लेना है और हमें लेना चाहिए। और इस तरह से यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी। एक मसीह यह भी कह सकता है, I'm a Christian, I don't need baptism. Jesus died for me, I believe that. My salvation is pakki, confirmed. I don't need baptism. Who said that? What Jesus said to John. Does anybody remember? हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना है। Even when Jesus went to John the Baptist and he just refused, he said, "Oh no, Lord, I deserve baptism from you, and you come to me? Oh, I can't baptize you. I'm not going to do that. No. How can I do that? I baptize my Lord? No." But Jesus said, "No, we have to fulfill the righteousness like this. You have to do this for me. If Jesus can do this, why can't we?" हमें भी करना चाहिए, इरादा पक्का करना चाहिए। ओके, अब आखिरी बात एक जाते जाते बताता, जब हम एक्स 8 निकालें, 8वें बाब की जल्दी 25 आयत से देखेंगे, 8वें बाब की 25वीं आयत में, और इसमें लिखा है, और फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया। आपको पता है कि ये एक हबशी यरूशलेम किला पर है, हम देखते हैं, बल्कि इसको मैं शॉर्ट में पढ़ना चाहता हूँ। यस, फिलिप्पस ने अपनी जुबान खोलकर उसी नविश्ता से शुरू किया और उसे यीशु की खुशखबरी दी, और राह में चलते चलते किसी पानी की जगह पर पहुंचे, और खोजा ने कहा, देख पानी मौजूद है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज रोकती है? बस फिलिप्पस ने कहा कि अगर तू दिल और जान से ईमान लाए तो बपतिस्मा ले सकता है। दिल और जान से ईमान लाए बपतिस्मे के लिए यू गॉट टू बिलीव फ्रॉम योर हार्ट। जॉन सोल को कहते हैं, दिमाग से भी और दिल से भी। हालेलुया, हमें ईमान लाना है, इकरार करना है। तो उसने जवाब में कहा, मैं ईमान लाता हूं। क्या उसने कहा जी? मैं ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह क्या है जी? खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है, यीशु मसीह खुदा का बेटा है। तो जब भी ईमान लाने की बात आती है तो ये बात याद रखें कि जब आपको पता है कि लाजर की बहन मार्था और मरियम, जब लाजर सो गया, मर गया, और यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए आए, तो उसने क्या बोला कि क्या तू ईमान लाती? उसने कहा, हाँ मैं ईमान लाती हूँ कि जो खुदा का बेटा तू ही है। तो जब ईमान लाने की बात आती है तो ये ईमान होना चाहिए कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये ईमान लाना है हमने। हालेलुया। बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया। फिलिप्पस और खोजा दोनों पानी में उतर पड़े, पानी में चले गए। हालेलुया। और उसने उसको बपतिस्मा दिया। जब वो पानी से निकलकर ऊपर आए, जब पानी से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद करूं फिलिप्पस को उठा ले गया। खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह चला गया। Miraculously, he was disappeared. फिलिप्पस was disappeared. वो पानी में गए, बपतिस्मा लिया। तो पहले शुरू में पानी का बपतिस्मा इस तरह दिया जाता था कि जहाँ दरिया होते हैं, जहाँ पानी ज्यादा होता है, जमा होता है, वहाँ लोग जाते थे और वहाँ बपतिस्मा जो है वो दिया जाता था। तो आज ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल में भी बपतिस्म की रस्म अदा की जा सकती है, समंदर में, दरिया में, या कहीं पर भी जहाँ पानी ज्यादा होता है, तो वहां पर बपतिस्म की सर्विस जो है वो होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल जो है, जो राइट प्रिंसिपल है, वो है टू डिप, दबो कर बाहर निकालना, ये बैप्टिज्म है। और इसके साथ हमारी पर्सनल कमिटमेंट है, और यीशु मसीह को पहनना है, और उसके साथ दफन होना है, उसके साथ विजदान। ये अगले संडे हम बात करेंगे कि बैप्टिज्म का जो मकसद है हमारी जिंदगी में वो क्या है। तो आज जो है हमने खुदावंद के कलाम में से जो देखा है वो ये है कि
जो ग्रीक वर्ड है बैप्टो, जिसका मतलब है डिप, दैट्स द ओरिजिनल वर्ड, ओके। और इस वर्ड जो है बैप्टोज निकला है, जिसका मतलब है डुबोकर बाहर निकालना, यानी पूरा किसी चीज को डबो देना पानी में और उसको बाहर निकालना। और बैप्टिज्म जो है वो हमें बाहर से धोता है, हालेलुया, ताकि हम मसीह को ऊपर पहन सकें। जब तक आप धोएंगे नहीं तो आप मसीह को आप ऊपर नहीं पहन सकते। नए कपड़े अब गंदे हुए हो, पसीना आया हो, बदबू आ रही हो, तो क्या आप नए कपड़े पहन के चले जाएंगे कहीं पर भी? क्या करते हैं हम? शादी में जाते हैं तो क्या करते हैं? पहले नहाते हैं, धोते हैं, तैयार, फिर नए नए कपड़े पहन के फिर जाते हैं। तो अगर आपने यीशु को पहनना है तो वॉश तो करना चाहिए ना, तो वो बैप्टिज्म की सर्विस है। तो बैप्टिज्म जो है वो हमें बाहर से धोता है ताकि हम यीशु को पहन सकें। मरकज 16:15-16 में हमने देखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और वो निजात पाता है, हालेलुया। फिर हमने देखा बपतिस्म जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो बपतिस्मा देता था वो तौबा की मुनादी का बपतिस्मा देता था कि लोग तौबा करें, क्योंकि उनको डिसबिलीव था यीशु मसीह को, उन्होंने रद्द किया हुआ था, इसलिए उनको तौबा के बपतिस्मा की जरूरत थी। और हमें ईमान लाकर बपतिस्मा लेना है, ये बात याद रखें, क्योंकि हमने मसीह को रद्द नहीं किया, हम तो मसीह पर ईमान रखते हैं, ठीक। और हमें यीशु मसीह पर पक्का ईमान लाकर और साथ अपने गुनाहों को छोड़कर और अपनी कमिटमेंट है वो मसीह के साथ करके तो बपतिस्मा लेना है। तौबा का बपतिस्मा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। यीशु मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा है, जो मसीही ईमानदार हैं वो यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लेते हैं और उसमें हम एक हो जाते हैं, हालेलुया। बपतिस्मा क्या करता है हमारी जिंदगी में कि वी बिकम वन, कैसे कि हम यीशु मसीह को जब हम अपने ऊपर पहन लेते हैं और हम यीशु मसीह में एक हो जाते हैं। फिर हमने देखा है कि बपतिस्मे के साथ साथ रिवार्ड भी है कि यीशु मसीह का बंदा पतरस जब एक्स 2 में मनादी करता है तो उन्होंने पूछा कि हम क्या करें कि निजात पाएं। बोला कि आप अपने गुनाहों को छोड़ें, इसके लिए बपतिस्मा लें और यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लें, ठीक। और इसके बाद क्या होगा कि आप रूह कुदस अनाम में पाओगे। देन यू विल रिसीव द होली स्पिरिट, व्हिच मीन यू विल रिसीव जीसस इन योर लाइफ, और आप यीशु मसीह को पहन लोगे, हालेलुया। और इसी तरह हबशी खोजा की हमने मिसाल जो है वो देखी है कि ये हबशी खोजा जो है ये अपनी राह पर था और इसको जब समझ में नहीं आ रहा था, ये यशायाह नबी का सहीफा पढ़ रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ये जो यशायाह नबी का सहीफा जो पढ़ रहा था वो ये था कि नाज़ नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और ज़मीन मेरे पांव तले की चौकी है, तो मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी रामगाह कौन सी है। तो इस तरह ये पढ़ रहा था तो इसको समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि ही वाज रीडिंग द ओल्ड टेस्टामेंट। लेकिन बाद में फिलिप्पस को खुदा के रूह ने वहाँ मौजूद किया और उसने उसको मनादी की, समझाया, और उसके बाद जब उसको बात समझ में आ गई तो देन व्हाट ही सेड, ये कौन सी ऐसी चीज या बात है जो मुझे बपतिस्मा लेने से रोकती है या रोक सकती है, मुझे बपतिस्मा लेना है। और उन्होंने चलते चलते ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर पानी बहुत सारा मौजूद था और वहां पर उस हबशी खोजा ने बपतिस्मा लिया और उसने अपने आप को मसीह के ताबिया कर दिया और वो मसीही हो गया। तो मेरे अजीजों, हमें बपतिस्मे के नाम से झगड़ना रगड़ना नहीं करना, हमें इसको अंडरस्टैंड करना है कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल में क्या लिखा है। कहीं पर भी बाइबल में स्प्रिंकलिंग वाटर जो है इसका बैप्टिज्म मेंशन नहीं, इवन नॉट इवन मेंशन देयर इन द बाइबल, नॉट इवन एनी इन शॉर्ट लिंक मेंशन देयर। बैप्टिज्म जो है ये वर्ड बैप्टो से निकला है, जिसका मतलब डबोना, और बैप्टोज का मतलब डबो का बाहर निकालना, ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। और इस ग्रीक वर्ड से इंग्लिश वर्ड जो है बैप्टाइज ये बनाया गया है, ओके। तो बैप्टिज्म जब लेना है तो फिर प्रॉपर अकॉर्डिंग टू द बाइबल लेना, नॉट स्प्रिंकलिंग वाटर का या झंडे नीचे से गुजरने का। हमें इससे कुछ शर्म भी महसूस नहीं होनी चाहिए। व्हाई शुड वी शेम ऑफ, वी शुड बी प्राउड ऑफ कि वी अंडरस्टूड टुडे, वी शुड बी प्राउड कि मैंने आज इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। आई नीड टू कमिट माई सेल्फ विद जीसस, आई वॉन्ट टू एक्नॉलेज जीसस इन माई लाइफ, I want to baptize in the name of Jesus. For what? To receive the gift of the Holy Spirit.
हालेलुया। So we need to prepare ourselves. ये बात याद रखें, बाज़ दफ़ा बैप्टिज्म भी हो जाता है, बाज़ दफ़ा हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, then again we go into the same life. It would happen, but you can change again anytime. You should ask the Holy Spirit to come and help you, and He is there for you. हालेलुया। तो आइए हम दुआ मांगे, अपने आप को तैयार करें। अगले संडे थोड़ा और डिटेल में बैप्टिज्म के हवाले से देखेंगे, तकरीबन 3 संडे मैं लूँगा, और इसके बाद फिर आपने फैसला करना है कि कौन कौन जो है वो बैप्टिज्म लेना चाहता है, कौन कौन जो है वो खुदा की इस शरीयत को पूरा करना चाहता है। We need to fulfill the law of Christ. It's not a joke. It's not a joke. It's like we learning the proper teaching from the Bible, what the Bible says. We need to do what the Bible says. We don't need to do what the mission says, what the mission statement is, what the people saying. No. We need to read ourselves and see what the Word of God says, what the Bible says, and go through there. Hallelujah. आइए हम दुआ मांगे। Praise Jesus. Hallelujah. खुदा उनकी तारीफ। भाई शमीम, आप दुआ में रहनुमाई करें प्लीज। खुदा कदूस जिंदा खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे मीठे पास के लिए जो तूने खुदा हम तक अपने बंदा के जरिए हम तक पहुंचाए, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। इसको हमारी जिंदगियों में जगह दे और खुदा हम डिसाइड कर सकें खुदा कि हमें इस रास्तबाजी को पूरा करना है। तो खुदा बच्चों को तैयार कर, उनकी रहनुमाई कर और इनकी अंडरस्टैंडिंग को बोलना। हम सबको बड़ी बरकत दे और अपने फजल में छुपाएगा, इसी से आमीन। अभी हम आखिर में खुदा उनकी तारीफ में गाएंगे। रब खुदा उन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। सब खड़े हो जाएंगे। ये ज़बूर 24 है, ये सबको आता है, सबको आता है, और सब आवाज से ये गाएंगे, और बच्चे भी हमारे साथ मिलकर गाएंगे। रब खुदा उन बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो, जान जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद
पाक तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी स्तुति करते हैं, शुक्र हम तुम्हारा तेरे शब्द करते हैं। आज किस वक्त के लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और इस हजी को भी खुदा हम तेरे नाम से मसा करते हुए करते हैं। देने वालों पर तेरी बड़ी बरकत चाहते हैं। प्रभु यीशु आज के इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसमें खुदा हमने बैप्टिज्म के हवाले से सीखा है। बख्श देकर खुदा हम इसी तरह सीखते रहें और अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के मुताबिक बसर करने की कोशिश करें। खुदा हम सबको बरकत दे के यहाँ से रुखसत करना। यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से सब कुछ मांगता हूँ, आमीन। आज हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज़ की आज्ञा बचाई, जिसने अपने सवाल को माफ करते हैं, तेरी मर्जी को माफ कर। हमें इस मैच में पढ़ने के बाद ये बादशाही कुदरत का हमेशा से रहती है। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस के वफाक को बशाकर आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रही है।